Hello all, welcome back to my channel. This channel is all about Shivu. So today's video is not a daily vlog. It's actually recommended by one of my subscribers. Subscribers is like one of like my family. तो ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रेकमेंड किया था कि लाइक मेक अ वीडियो ऑफ हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर इन 10th standard, 12th standard or in engineering college or they are from a non-CS background. This video will be very useful for all of you because this will capture all the details of how to become a software engineer. So let's begin. Okay, so let's start with the most easiest one to the most non-conventional one. तो और मैं अपनी लाइफ की जर्नी, अपनी करियर की जर्नी भी डिस्कस करूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो कि मैंने कैसे किया, सो दैट एवरीवन हु इज रिलेटिंग टू मी विल काइंड ऑफ गेट सम मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कि हम आगे कैसे कर सकते हैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं द मोस्ट ईजिएस्ट वे. 10th स्टैंडर्ड के बाद साइंस लेना है. साइंस के बाद मतलब PCM PCB लेके यू हैव टू गिव 12th स्टैंडर्ड की जेई मेंस, जेई एडवांस. अभी जेई मेंस में जेई मेंस मतलब प्री एग्जाम होती है बिफोर जेई एडवांस. जेई मेंस मतलब एवरीबडी कैन गिव जेई मेंस. उसमें हमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस लगते हैं जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर यू कैन गेट प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल. दोज आर ऑल्सो नाइस. इट्स नॉट नेसेसरी कि जेई मेंस दिया जेई एडवांस नहीं दिया मतलब यू विल नॉट गेट गुड प्लेसमेंट्स आफ्टरवर्ड्स. So JEE Advanced मतलब you'll get IIT colleges. So India में जितने भी IIT colleges है you can get into that. IIT is like one of the most premium and top colleges of India. So you can get into IIT and you can become an IITian. Okay, so if you're getting qualified to JEE Advanced, that means you have a pretty good score in JEE Mains. If you're giving JEE Advanced, you have to work really hard. You have to study really hard to crack one of those exams to get into IIT or NIT. But not necessary that if you're not giving JEE Advanced, that means you'll not get a good college. But ऐसा नहीं है. If you're getting good marks in JEE Mains, you can get into a good college afterwards and आप engineering कर सकते हैं उसके बाद. Once you're into engineering college, आपको necessary नहीं है कि आप CS background से ही आप बन सकते हो एक software engineer. ऐसा नहीं है. You can become a software engineer even if you are from a non-CS background. सो वंस यू आर इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 साल बाद 4th ईयर में प्लेसमेंट्स होते हैं विच हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. तो वंस यू कंप्लीट योर 4 years, you'll get into placements and you'll become a software engineer. So this is the most straightforward way of how to become a software engineer. So now let's discuss the other ways of how to become a software engineer. The second way of becoming a software engineer is to complete a diploma in CS or IT and joining the engineering college directly in 2nd year. So it will be like 3 years of diploma plus 3 years of engineering college. So total of 6 years you will invest in after completing a diploma. So if you are opting to give 12th standard, it will also invest the same amount of years you are giving for diploma. So it will be like 2 years of 12 till 12th standard and 4 years of engineering afterwards. So total of 6 years. थर्ड वे इज आप 10th स्टैंडर्ड के बाद कॉमर्स ले सकते हो. मतलब आप अगर कॉमर्स लाइन में जाना चाहते हो एंड यू आर इनटू कॉमर्स, सो आफ्टर कंप्लीटिंग कॉमर्स फॉर 2 years लाइक 11th 12th एंड उसके बाद आप BCA ले रहे हो, तो वो भी एक वे है ऑफ बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आप BCA ले सकते हो. BCA कंप्लीट करने के बाद, BCA इज फॉर 3 years. So BCA कंप्लीट करने के बाद there are very less chances of getting a job into IT or IT industry directly because there are very less job offers for BCA. तो आप अगर MCA कर रहे हो उसके बाद, MCA is like masters of BCA. तो आप अगर MCA कर रहे हो तो it is total of 5 years of so it is total of 5 years MCA करके. So BCA plus MCA 5 years. If you are doing MCA तो it will become equivalent to an engineering degree. सो उस पॉइंट पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी IT इंडस्ट्री में आने के लिए. सो इफ यू आर कंप्लीटिंग BCA प्लस MCA, यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन IT इंडस्ट्री. This is also a way of becoming a software engineer by taking commerce in 11th and 12th standard, and after that you can take BCA.
तो ये था 10th के बाद कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नाउ फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टू ऑप्शन से, फर्स्ट टू वे से आप इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंच चुके हैं, तो उसके बाद का भी हम डिस्कस करते हैं। So after coming into an engineering college for the first year, all the branches have same subjects. They all have PCM. They have to go through these exams. Everything is common for the first years. So when you come to second year, whatever branch you choose for yourself at the college admissions after 12th, you will go into that branch, and all the subjects related to your branch, you'll go into those. So specifically, let's discuss for first CS and IT, because CS and IT has all the curriculum related to computer engineering, which is required to become a software engineer. But not necessary कि अगर आप CS और IT में ही हो तो आप software engineer बन सकते हो, ऐसा नहीं है necessary. If you are getting into mechanical or ENTC or any other branch, it is also possible to become a software engineer, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. So second year, third year is mostly filled with college exams and curriculum में जो जो subjects आपको दिए हैं वो सारे पढ़ने पड़ते हैं. But fourth year is most importantly focused on interviews and placements. So fourth year is all important to that. सो जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़ते हैं इन कॉलेज, जैसे कि डीएसए हो, जावा हो, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो कोई भी, वो सारा इम्पोर्टेंट होता है टू गिव प्लेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज इन योर फोर्थ ईयर. सो सेकेंड ईयर में जैसे मैंने बोला कि सारे स्टूडेंट्स अपने अपने ब्रांच में जाते हैं. उस टाइम पे इवन डिप्लोमा स्टूडेंट्स जॉइन योर कॉलेज, बिकॉज डिप्लोमा स्टूडेंट्स का भी उनका डिप्लोमा खत्म होता है एंड दे जॉइन इंजीनियरिंग कॉलेज एज आई डिस्कस बिफोर. इसके आगे सबके कॉमन जर्नी होता है अपने अपने ब्रांचेस में जाके. So once you get into fourth year and you have scored an interview and you have scored a good placement offer एंड आपको कंपनी का ऑफर लेटर आ चुका है, तो उसके बाद आप अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो, आप फोर्थ ईयर के एग्जाम्स देते हो एंड यू कंप्लीट योर इंजीनियरिंग. सो वंस यू जॉइन दैट कंपनी एज ए ट्रेनी, वहाँ पे उस कंपनी के जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी टेक स्टैक पे उनको आपको ट्रेनिंग देना है, वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ती है. वंस यू कंप्लीट दैट ट्रेनिंग, इधर आपका कोई टेस्ट होगा उस ट्रेनिंग पे या फिर डायरेक्टली आप डिप्लॉय हो जाते हो ऑन अ प्रोजेक्ट. सो वहाँ से आपकी करियर जर्नी शुरू होती है. वंस यू गेट इनटू अ प्रोजेक्ट, वहाँ पे आपको आईटी इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज मिलेगा, स्टार्ट होगा नॉलेज मिलना, एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग थिंग्स. सो वंस यू आर डिप्लॉयड इनटू प्रोजेक्ट, वहाँ से आपकी करियर जर्नी शुरू होती है. तो यहाँ से आपको आपका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज ये पीरियड आपके लिए, मतलब आपके आपके सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सीखने के लिए बहुत मिलता है बिकॉज यू आर फ्रेशली इनटू आईटी इंडस्ट्री. तो आपको सीखने के लिए बहुत है इधर, बट यू आर स्टिल अ ट्रेनी. तो ये था एक प्रोसेस ऑफ हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मतलब प्रोसेस कि लाइक 10th में क्या लो, 12th में क्या लो, इंजीनियरिंग में क्या करो. बट द मेन पार्ट इज आपको सीखना क्या है. जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, आपको सीखना क्या है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि आपकी फ्यूचर करियर कैसा दिखेगा. अभी जब आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो, सेकेंड ईयर से आगे आपका जब ब्रांच शुरू हो रहा है, आपके आपके सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आपका आपके फेवरेट लैंग्वेजेस या फिर आपको किस में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है. अभी आप अगर CS बैकग्राउंड से हो और इंजीनियरिंग में हो, तो आप सी प्लस प्लस, जावा या फिर कोई वेब टेक्नोलॉजी में आपको अगर इंटरेस्ट आता हो, तो उसको आपको पकड़ के रखना है, उस पर आपको काम करना है. उस टेक स्टैक के बेसिस पे आपको इंटरव्यूज आपके पास होंगे. अभी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ये सब मैंने लैंग्वेजेस बताए, बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स शुड बी रियली गुड. यू शुड हैव अ गुड हैंड इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है इंटरव्यूज़ में. एंड अगर आपको कोई एप्टी देनी है, कोडिंग राउंड्स है, तो DSA के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू हैव अ गुड होल्ड ऑन DSA. तो अभी जैसे मैंने DSA के बारे में बताया, DSA कैन गेट यू इनटू बिग प्रोडक्ट कंपनीज जैसे कि फैंग है, and also get you into investment banking companies, top level companies. तो DSA can definitely help you in that. पर अगर आपको DSA इतना पसंद नहीं आ रहा, you can definitely focus on web technology या फिर Java, C++. That will also give you a good company, that will also give you a placement for a
गुड कंपनी जो आपको जहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये था एंटायर इंफॉर्मेशन। अभी मैं अपनी बात करती हूँ कि हाउ आई बिकेम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, व्हाट वाज माय करियर जर्नी। तो 10th स्टैंडर्ड में आई वेंट इनटू 10th स्टैंडर्ड। 11 12th में मैंने साइंस लिया एंड आई गेव जेई मेंस। फिर जेई मेंस के बाद आई वाज प्लेस्ड इनटू कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज इन पुणे। it's a it's a very good college. It's a girls college, it's a very good college, I love my college. So so yes, I'm not a CS or an IT engineer. I am an ENTC engineer who's placed into a well-known company now. So when I went into second year, I kind of knew that I want to go into a software industry, IT industry में जाना था मुझे. So I started my preparations in third year. I kind of knew what to learn and what tech stack I want to prepare for my career. तो इसीलिए मैंने जावा, ओप्स और डीए से ये तीनों स्टार्ट कर दिया था थर्ड ईयर में। तो मैंने ये जो टेक स्टैक आपको बताया, ये सारा मैंने एक्सटर्नली सीखा बिकॉज इट वाज नॉट देयर इन आवर करिकुलम। बहुत कम पार्ट था, बहुत कम पोर्शन था, इसलिए मैंने एक्सटर्नली सीखना चालू किया। मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए जस्ट टू हैव अ गुड होल्ड ऑन लैंग्वेजेस। एंड मैंने डीए से भी किया। आई हैड अ वेरी गुड होल्ड ऑन डीए से एज वेल। सो जब फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स की बात आई, ईएनटीसी को भी आईटी वाज आईटी कंपनीज वर अलाउिंग अस टू गिव इंटरव्यूज बिकॉज ईएनटीसी एंड आईटी आर कंसिडर्ड टू बी a little siblings. So in fourth year, I gave a lot of interviews and I got placed into Accenture. It's a service based company and वहाँ से मेरी journey शुरू हुई, career journey. I was first sent to Chennai for training and वहाँ से actually I got deployed to a project. वो प्रोजेक्ट पुणे में था, so I came back to Pune. After coming to Pune, after completing 2.7 years of experience in Accenture, मैंने स्विच किया। फिर वहाँ पे एक्चुअली स्विच करने के टाइम पे मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए, मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए। आई हैड अराउंड 7 to 8 ऑफर्स इन माय हैंड एंड जो भी सबसे ज़्यादा ऑफर दे रहा था, आई वेंट टू दैट कंपनी। तो मेरी सेकेंड कंपनी थी वर्चूसा एंड इन वर्चूसा आई वाज वर्किंग फॉर सिटी बैंक प्रोजेक्ट। सिटी बैंक इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे मैंने अच्छा सा लर्निंग लिया था उस कंपनी में। So in Citibank, I had a chance to work on Angular and Java, so it was like a full stack role for me, which was it was my first time to get into a full stack role. तो वहाँ पे मुझे सीखने के लिए बहुत मिला and फिर again I had an opportunity to switch and to get a better role. तो अभी in my current company I'm working on React and Java as well, Java Spring Boot. तो it is also a full stack role, but इसमें React भी सीखने को मिल रहा है, so it is an amazing journey. So now today at this day, my total experience is more than 4.5 years. I'm almost about to touch 5 years. So this was my journey. ये जर्नी बताने का पॉइंट ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर अ सीएस और आईटी इंजीनियर टू बिकम टू हैव अ गुड करियर इन आईटी इंडस्ट्री. I myself being an ENTC engineer, I have come this far. So obviously you also can do it. बस इसमें एक चीज़ है कि यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी ब्रांच हो, कोई भी वे हो, जो 3 वेज मैंने बताया, कोई भी वे हो, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन हार्ड वर्क। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, इवन इफ यू आर आई टी इंजीनियर और अ सी एस इंजीनियर, पढ़ाई इज important, learning is important, knowledge is important. So this is how you become a software engineer. I hope you love this video. I hope this video was very informative and useful to all of you who's in this stage of life. So now every Saturday or Sunday I'm planning to put up a video जिसमें I'll give informative videos like fashion or career or lifestyle. So I'm planning to make a segment out of it. So if you're a fashion enthusiast, do check out my Instagram and YouTube. I have a lot of reels and YouTube shorts on my Instagram and YouTube. So do check it out. I have given the link in the description below. Also,
we just crossed our 100 subscribers abhi kuch past days mein, and my plan is to complete 500 subscribers as soon as possible. So do show some love, do show some support to my channel, and also leave comments below for every video whichever you're watching. I really love to read out your comments, and I also mention them in my daily vlog, because I was like, I really get excited when you when you leave comments for me. So that's it for today. Like, share, and subscribe my channel. See you next time. Bye bye.